नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत करेंगे संदेश खाली के मुद्दे पर। एक तथाकथित वीडियो वायरल हो रहा है जिसे टीएमसी स्टिंग ऑपरेशन बता रही है। वीडियो में संदेश खाली पर खुलासे का दावा टीएमसी की ओर से किया जा रहा है। इस वीडियो में शुवेंदु अधिकारी और केंद्रीय एजेंसियों पर कई सारे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। टीएमसी का यह कहना है कि संदेश खाली पर जनता के बीच कहानी बनाई गई, जिसे इस वीडियो में भी दिखाया गया है। तो हालांकि इस वीडियो की पुष्टि एएमवी नेटवर्क बिल्कुल नहीं करता है, लेकिन ये एक वीडियो वायरल हो रहा है जो टीएमसी जिस पर दावा कर रही है कि इसमें जो व्यक्ति बैठा हुआ है, जो शख्स बैठा है, वो बीजेपी का ही जो है समर्थन करने वाला है, काम करने वाला है। तो उनके कार्यकर्ताओं के बारे में उन्होंने बताया कि बीजेपी का कार्यकर्ता है। इसी के साथ ही उन्होंने निशाना साधा है कि बीजेपी का नेता है और इसी ने ये खुलासा किया है कि जो संदेश खाली में जितनी भी चीजें हुई हैं वो बीजेपी कि एक षड्यंत्र है, बीजेपी का एक षड्यंत्र है और बीजेपी के कहने पर किया गया है। गंभीर आरोप जो है टीएमसी अब बीजेपी पर लगा भी रही है और उसे घेरने का प्रयास भी कर रही है। यानी कि संदेश खाली के मुद्दे पर एक बार फिर से सियासत गर्म आ गई है। संदेश खाली के मुद्दे पर एक तथाकथित ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसमें जो ये शख्स दिखाई दे रहा है, टीएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि बीजेपी का नेता है। तो वहीं पर बीजेपी इस आरोपों का खंडन करते हुए कह रही है कि जो ये व्यक्ति दिखाई दे रहे हैं वो बीजेपी के नेता नहीं है। हालांकि ये समर्थन जरूर कर रहे हैं बीजेपी को, लेकिन ये बीजेपी का नेता नहीं है। बीजेपी का इनसे कोई भी लेना देना नहीं है। तो यानी कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो गया है। तो टीएमसी स्टिंग ऑपरेशन इसे बता रही है। तो एक तरफ गंभीर आरोप टीएमसी द्वारा लगाए गए हैं, दूसरी तरफ सीधे कोलकाता लेके चलते हैं जहां पर अभिषेक बनर्जी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते आपको। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है उनकी। আমাদের দেশের কাছে এটা লজ্জাজনক ঘটনা যে সমস্যা হয়েছে হ্যাঁ কি না যাচাই না করে সংবিধানে রয়েছে স্টেট লিস্ট, ইউনিয়ন লিস্ট, কনকারেন্ট লিস্ট। আরে পুলিশ তো স্টেট লিস্টে রয়েছে, পুলিশকে তো দিতে হবে সেই সুযোগটা। আপনি তো সংবিধানের অবমাননা করছেন। আমি ধরলাম 6 মাস দিলাম পুলিশকে, পুলিশ পারলো না, তারপর আমি একটা ব্যবস্থা করব, ব্যবস্থা নেব। আপনার সেই অধিকার আছে, আমরা সেই সম্মানকে, আমরা সেই সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাই, কোনো অসুবিধা নেই। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিজেপির নেতারা বলছে পরের দিন বোম ফেলবো সপ্তাহ শুরুতে, আর দেখছি সোমবারই 25,000 লোকের চাকরি চলে যাচ্ছে। এটা তো কাকতালীয় নয়। একটা সপ্তাহ শুরু হয় সোমবারে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চাকরি দিতে চায়, আপনারা চাকরি খেতে চান। আপনারা চান গরিব মানুষ যাতে চাকরি না পায়। কোথায় কোথায় হাইকোর্টে গিয়ে একটা করে পিল করে দেওয়া। সিপিএম এর কেউ পিল করবে আজকের ভিডিওর পর যে শুভেন্দু অধিকারী, গঙ্গাধর কয়াল, শান্তি দলুই এদেরকে কাস্টডিতে নিয়ে অ্যারেস্ট করে ইন্টারোগেট করা হোক? করবে? উনি তো নিজে স্বীকার করছেন। সকালে বলছেন হ্যাঁ ওটা আমার স্বর, বিকেলে টুইট করে বলছেন না ওটা আমার স্বর না, হাই টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে। মানে কি 2 নম্বরই। সকালবেলা একটা সংবাদ মাধ্যমে তিনি ফোনও দিতে গিয়ে বলছেন যে হ্যাঁ ওটা আমি, যেটা দেখা যাচ্ছে ওটা আমি, আর গলার স্বরটা আমার। উনি তো নিজে স্বীকার করছেন। আবার বিকেলবেলা তিনি টুইট করে বলছেন না ওটা ডিস্টর্টেড, ওটা আমার স্বর না। ওই সকালে যাবো, মাথার ঠিক থাকছে না, মাথার ঠিক থাকছে না। বিজেপির কোন নেতা কখন কি বলবে? সুকান্ত বাবু বলছে তৃণমূল টাকা দিয়ে করিয়েছে, আর উনি বলছেন না আমি করেছি। তারপর বিকেলবেলা বলছে যে না আমি করিনি। সুকান্ত বাবুর বক্তব্যের সাথে শুভেন্দু বাবুর বক্তব্যের কোনো ভারসাম্য নেই। রাহুল সিনহার সাথে শ্রমিক ভট্টাচার্যের নেই, দিলীপ ঘোষের সাথে সুকান্তর নেই। আরে মিথ্যে কথা বলতে গেলেও তো একটা একতা থাকা উচিত। দেয়ার হ্যাজ টু বি আ ইউনিফর্মিটি ইভেন হোয়াইল ইউ আর লাইং। সেটাও তো নেই।
সব আলাদা আলাদা কথা বলছে। তো এরা জানে যে এদের যে চক্রান্ত, এদের যে ষড়যন্ত্র আজকে জনসমক্ষে চলে এসছে এবং বিজেপির আসল চেহারা, বিজেপির যে নগ্ন রূপটা আজকে মানুষের সামনে জনসমক্ষে এসছে এবং এটা প্রকাশ্যে। আপনাদের কারোর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে নির্দিষ্ট এক একে করতে পারেন। একটা মাইক দিয়ে দাও, সবাই মাইকে প্রশ্নটা করলে বেটার হবে। ঠিক আছে, লাগবে না, ওখানে দিয়ে দাও একে একে। মাইক লাগবে? আচ্ছা। Yeah, hi, I'm Devdeep Purohit. I'm from the Telegraph. There are 2-3 questions I think which must be in the minds of everyone. One is obviously तो संदेश खाली मामले को लेकर क्योंकि एक तथाकथित वीडियो वायरल हुआ है, हालांकि इसकी पुष्टि एएमवी नेटवर्क नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो के वायरल होने के बाद सियासत गर्म आ गई है। इसी के साथ ही अभी आपने अभिषेक बनर्जी को सुना, उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा है, शुभेंदु अधिकारी पर उन्होंने निशाना साधा है, साथ ही साथ जांच एजेंसी पर भी उन्होंने निशाना साधा है कि जिस तरह का वीडियो वायरल हुआ उस पर कुछ भी बोलते हुए नजर नहीं आ रहे बीजेपी। तो कई बातें उन्होंने कही है। इसी के साथ ही जिस तरह की कार्रवाई की गई है उस पर भी उन्होंने कई सवाल खड़े कर दिए। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ गई हैं। शिवम, कई सारे इल्जाम जो है टीएमसी द्वारा लगाए जा रहे हैं, एक वीडियो सामने आया है। से सामने आया है। ऐसे तो अभी लोकसभा चुनाव चल रहा है, रोज एक नया जो बखेड़ा है वो खड़ा हो रहा है बंगाल में, जिसपे लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। और आज कुछ समय पहले ही इस वीडियो को लेकर, पहले तो मैं बता दूं, एआईटीसी के जो महासचिव अभिषेक बनर्जी हैं, उन्होंने इस पूरे मामले पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और कुछ समय पहले ही उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की है। ये मामला यह था कि सुबह एक वीडियो दिखाई पड़ती है सभी को, जो संदेश खाली 2 के बीजेपी के मंडल अध्यक्ष गंगाधर कयाल उसमें बोलते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो पूरी घटना संदेश खाली पे हुई है, जितने भी केसेस वहां पे देखे गए हैं, ये पूर्व नियोजित एक षड्यंत्र था जी। मुझे जैसा कहा जा रहा था बीजेपी के नेताओं की तरफ से, मैं वैसा ही कर रहा था। और इसमें मुख्य बात ये कही है उन्होंने कि जिनका रेप नहीं हुआ है उनको भी झूठे रेप के आरोप में लाया गया है। हालांकि इस वीडियो की जो सत्यता की पुष्टि है ना एएमवी नेटवर्क करता है, ना ही बंगाल से हम करते हैं, क्योंकि अभी इसकी जो पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन ये वीडियो सुबह से पूरे बंगाल में फैल रहा है, एकदम हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और न्यूज पे ये वीडियो चल रहा है। ठीक, लेकिन शुभम, यहाँ पर देखा गया जिस तरह से अभी बीजेपी की तरफ से क्या कुछ अभी रिएक्शन आया, क्योंकि काफी गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। ममता बनर्जी ने खुद एक्स पर पोस्ट करके इस पे लिखा है कि सुनियोजित ये षड्यंत्र था, जिसको लेकर टीएमसी की जो एक छवि थी उसे धूमिल करने का प्रयास किया गया। बीजेपी की तरफ से अभी तक क्या रिएक्शन आया इस पर, क्योंकि काफी गंभीर आरोप लगा दिए गए हैं और मुश्किलें भी पैदा हो सकती है उनके लिए। हाँ, बीजेपी की तरफ से अभी रिएक्शन कुछ नहीं आए हैं और अब जो रिएक्शन आएंगे वो हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे, क्योंकि टीएमसी की तरफ से ये रिएक्शंस जो आए हैं, अभी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, सुबह से जो बड़े मंत्री हैं, नेता हैं, उनकी तरफ से ट्वीट किए जा रहे हैं लगातार, और सारे रिएक्शन अभी टीएमसी की तरफ से आए हैं। अब बीजेपी की तरफ से रिएक्शन आने शुरू होंगे। बिल्कुल, हालांकि इसी पर ये बोला जा रहा है कि मानसिक तौर से इन्हें जो है सही नहीं बताया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। हाल ही में अभी रिएक्शन भी आया। चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी 4 और 5 मई को यूपी में रहेंगे। पीएम 4 मई को कानपुर में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो रोड शो 5:30 बजे कानपुर के गुमटी नंबर 5 स्थित गुरुद्वारा में दर्शन करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे गुरुद्वारा गुमटी नंबर 5 से खोई मंडी तिराहा कालपी रोड तक वो रोड शो करते हुए भी नजर आएंगे। इसके अलावा वो अकबरपुर में जनसभा भी करने वाले हैं। वहीं रविवार को पीएम नरेंद्र मोदी इटावा का भी दौरा करेंगे। तो यहाँ वो भरथना विधानसभा में इटावा, कन्नौज और मैनपुरी लोकसभा प्रत्याशी के लिए जनसभा भी करेंगे। इसके बाद वो सीतापुर, खीरी और धोराहा लोकसभा सीट के लिए हर गांव में जनसभा भी करने वाले। यहां से पीएम नरेंद्र मोदी शाम को अयोध्या पहुंचेंगे। रामलला के दर्शन के बाद सुग्रीव किला से लता मंगेशकर चौक तक उनका रोड शो रहने वाला है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 मई को वाराणसी लोकसभा सीट से नामांकन दाखिल करने वाले हैं। मोदी 13 मई को वाराणसी पहुंचेंगे और रोड शो भी करेंगे। नामांकन से पहले मोदी श्री काशी विश्वनाथ धाम में षोडशोपचार विधि से पूजन भी करने वाले हैं। फिर काल भैरव मंदिर में विशेष पूजा कर जीत का आशीर्वाद भी लेंगे।
वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज गुना शिवपुरी सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। अशोकनगर में सभा को संबोधित करते हुए योगी ने कहा कि चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार। और लोगों से पूछा जाता है कि मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं कि विकास के साथ साथ सब कुछ होगा, लेकिन जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये संकल्प जो देश में दिख रहा है वो अभूतपूर्व है। आज का भारत एक नया भारत है। लेकिन मैं कह सकता हूं पूरे देश के अंदर जो आवाज है, दो ही स्वर गूंज रहे हैं। एक है चारों ओर एक ही स्वर है कि फिर एक बार मोदी सरकार का एक ही स्वर गूंज रहा है। और लोगों से पूछा जाता है कि क्यों मोदी सरकार क्यों चाहिए, तो लोग कहते हैं साहब विकास भी होगा, सब कुछ होगा। लेकिन उनके मन में एक ही बात है, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती आगरा में जनसभा को संबोधित करने पहुंची तो सोने का उन्हें मुकुट पहनाकर उनका स्वागत किया गया। कोठी मीना बाजार मैदान में जनसभा में मायावती ने कहा कि जो गरीब लोग हैं जिन्हें बीजेपी ने थोड़ा राशन दिया है, ये लोग अपने कंधे पर थैला लाद कर घूम रहे हैं और कह रहे हैं कि जो फ्री राशन लिया उसका कर्ज वोट देकर देना होगा। ये राशन नरेंद्र मोदी ने फ्री नहीं दिया है। खबर बाराबंकी से, जहां पर बाराबंकी की फतेहपुर विधानसभा सीट से पूर्व बसपा विधायक मीता गौतम ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। मीता गौतम को कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा प्रभारी अविनाश पांडे ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता दिलाई। वहीं उनके साथ उनके सैकड़ों समर्थकों ने भी कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ले ली है। इस मौके पर पूर्व सांसद पीएल पुनिया, दिनेश सिंह, नसीमुद्दीन सिद्दीकी भी मौजूद रहे। वहीं संत कबीर नगर में नामांकन के छठे दिन बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण कुमार निषाद ने नामांकन किया। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और पूर्व मंत्री राम चौहान भी मौजूद रहे। संत कबीर नगर में छठे चरण में 25 मई को चुनाव होना है। आपको बता दें कि संत कबीर नगर से साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रवीण कुमार निषाद 35,749 वोटों के अंतर से जीते थे। वहीं दूसरे नंबर पर रहे बीएसपी के भीष्मा शंकर को 43,01,794 वोट मिले थे। खबर मैनपुरी से है, जहां पर मैनपुरी में लोकसभा चुनाव के बीच कुछ नेताओं ने आदर्श आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई। सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में बीएसपी प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव वोटरों को पैसे बांटते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो में बीएसपी प्रत्याशियों के साथ कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष समेत कई लोग नोटों की गड्डियों को गिनते हुए भी दिख रहे हैं। वीडियो में शिव प्रसाद 5-5 100 की गड्डियां बांटते हुए नजर आ रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे गोरखपुर से। खबर है जहां पर गोरखपुर के शहजनवा इलाके के रानूखोर गांव में आमी नदी के किनारे आजमगढ़ की एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोप ये लगा है कि घर से नाराज होकर निकली युवती की मदद करने के बहाने से युवक ने घटना को अंजाम दिया। शुक्रवार की सुबह 4 बजे पास के गांव में जाकर युवती ने घटना की पूरी जानकारी दी। इसके बाद पुलिस और परिजनों को ये जानकारी दी गई। युवती के चेहरे और शरीर पर चोटों के निशान भी है। इसके बाद उसे उपचार के लिए अस्पताल भेज दिया गया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर अज्ञात पर दुष्कर्म का केस दर्ज कर लिया है। तो वहीं आज सुबह शहजनवा पुलिस और एसओजी की टीम ने मुठभेड़ की। इस दौरान दुष्कर्म के आरोपी के पैर में गोली जा लगी। आरोपी को शहजनवा सीएचसी में भर्ती करा दिया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। खबर गाजियाबाद से, जहां पर गाजियाबाद में पुलिस और साइबर टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो भोले भाले लोगों से उनके कागजातों के जरिए फर्जी बैंक खाता खुलवाया करते थे
और उन बैंक खातों में वो अवैध रूप से लोगों से ठगी कर पैसे मंगाया करते थे। दरअसल कौशाम्बी थाना पुलिस को ये सूचना मिली थी कि कुछ लोग दिल्ली, एनसीआर समेत गाजियाबाद में भी लोगों के कागजातों के जरिए बैंक खाता खुलवाकर और बैंक अकाउंट्स में फर्जी तरीके से लोगों से ठगी कर लाखों रुपए जमा करवा रहे हैं, मंगवा रहे हैं और उन बैंक खातों से मोटी रकम निकालकर फरार हो जाते थे। पुलिस ने बताया कि अब तक ये सभी लगभग 10 करोड़ रुपए की ठगी कर चुके हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने 7 मोहरे, 10 मोबाइल फोन, 1 टैब और 41 एटीएम, 5 चेकबुक और कई कागजात और एक कार बरामद की है। आज दिनांक 4 मई 2024 को थाना कौशाम्बी के साइबर टीम को मुखबिर द्वारा एक सूचना मिली, जिसमें 5 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया। उनकी तरफ से कई फर्जी मोहर, 10 मोबाइल फ़ोन, 1 टैब, 41 बैंकों के एटीएम कार्ड और क्रेडिट कार्ड, 5 चेकबुक, फर्जी वोटर आईडी, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये इनसे बरामद किए गए। इनसे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये सोशल मीडिया के बहाने लोगों को प्रलोभन देते थे कि आप इन्वेस्ट कीजिए, इसका आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। शुरुआत में कुछ स्टेप्स में ये उनको रिटर्न भी देते थे और बाद में बड़ी अमाउंट जब उनसे लेते थे तो इनको रिप्लाई देते नहीं थे और ग्रुप बंद करके गायब हो जाते थे। इसी तरह से ये लोगों से ठगी करते थे। ये टोटल 5 अभियुक्त हैं, जिनके नाम आकाश, मनोज, अमरेश, नीतीश और नमन जैन हैं। ये इनके द्वारा जितने भी खबर मथुरा से, जहां पर 24 घंटे के अंतराल में युवक युवती के अलग अलग स्थान पर अधजले शव मिलने से सनसनी फैल गई। शुक्रवार को गोवर्धन थाना क्षेत्र में युवती का अधजला शव नहर की पटरी के पास मिला था, तो शनिवार को राया क्षेत्र में एक लोहे के बंद बक्से में युवक का अधजला शव मिला है। 24 घंटे में 2 शव मिलने के बाद पुलिस सख्ते में आ गई। संभवतः दोनों हत्यारे एक दूसरे से जुड़ी हुई बताए जा रहे हैं। क्षेत्र में बिजपुरी चौकी से जो रास्ता गया हुआ है अलीगढ़ की तरफ, उसमें एक डेड बॉडी जो है बक्से में रखी हुई मिली थी सड़क के किनारे, और उसको कुछ जलाया भी गया था। इसके संबंध में अभी उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। शिनाख्त कराने का प्रयास किया जा रहा है और पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी भेज दी है तथा शिनाख्त होने पर अगली विधिक कार्रवाई। वहीं फतेहपुर की गाजीपुर थाना क्षेत्र में हुई हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है और खुलासा करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से आला कत्ल घटना में उपयोग बाइक और मृतक का मोबाइल भी बरामद कर लिया। एसपी उदय शंकर सिंह ने बताया कि आरोपी केशन चंद्र की प्रेमिका पर मृतक कृपाशु शुक्ला बुरी नजर रखता था, जिसके कारण केशन चंद्र ने अपने साथी आशीष के साथ मिलकर 29 अप्रैल की रात कृपाश शुक्ला को शराब पिलाने के बाद उसके गमछे से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। पहचान छिपाने के उद्देश्य से मृतक के चेहरे पर ईंट से प्रहार कर चेहरा कूच कर दिया गया। इसके बाद आरोपी ने बाइक में मृतक के शव को लादकर गाजीपुर थाना क्षेत्र के चक काजीपुर के पास सूखी नहर में फेंक दिया था। दिनांक 30 अप्रैल को थाना गाजीपुर क्षेत्रांतर्गत एक सूखी नहर में अज्ञात युवक का शव प्राप्त होने के परिणाम स्वरूप बाद में शिनाख्त हुई और तदोपरांत इसमें अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस ने गहराई से छानबीन करते हुए इस घटना में वास्तविक रूप से सम्मिलित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त आला कत्ल बरामद किया, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल को बरामद किया, मृतक के मोबाइल फोन को बरामद किया तथा नामित 5 निर्दोष अभियुक्तों को पुलिस ने बचाने का भी साथ साथ काम किया। जो वादी के द्वारा नामित किए गए थे वो झूठे पाए गए। पुलिस के द्वारा इस पूरी घटना का अत्यंत ही कम समय में और बड़े ही प्रोफेशनलिज्म के साथ इसका खुला। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए AMB नेटवर्क। नमस्कार।